हाँ, we are just waiting for just 1 minute, है ना? सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ही we are going to start. Okay, ma'am. Okay. By that time you can just post your doubts in the chat box. आप लोग के messages आए थे कि doubts है इसके regarding. I have seen your messages. आप लोग एक बार उसको. Excuse me, ma'am. Yes, बेटा. Ma'am, I was solving one Socrative, ma'am, when it was the last month of fractions. Ma'am, when I was doing it, I have a doubt in question number 9. Socrative में. Ma'am, I also got that one incorrect. Socrative of the decimals one or the fractions one? Fractions जो post हो चुका था पहले, right? Ma'am, in Socrative of decimals one, ma'am, there was a number line and the question was wrong. Which number? Can you tell me the number? Ma'am, 19 and 20. 19 and 20. Ma'am, it was written that what is point C and the answer was of point D. 19 and 20 में भी same दिक्कत था. चलो check कर लेंगे, कोई बात नहीं. And you are asking about the fraction of okay. Just give me 1 second. I'm just taking out the fractions. क्या कहते हैं आप लोगों का Socrative. Just hold on, है ना? Okay, here we are. Let's see. This is the quiz that has been posted for the fractions one. Can you please tell me the number? जिसमें आप लोगों को doubts है बेटा? Ma'am, I have question number 3. आप एक बार Socrative fraction का number जो है आप एक बार post कर दो. Question number 3 देख लेते हैं. Question number 9 only, which were you showing me? Okay, 3 and 9. ठीक है. We are doing question number 3 first, and then we are going to do the question number 9. Now, Don Bradman scored this number from 80 innings, where Sehwag has scored this one from 160 innings. Okay. Who scored maximum runs per innings? So basically आपको per innings का यहाँ पे निकालना है बेटा. Beta, if I talk about Don Bradman, what is his? देखो बेटा वो 80 innings पे, I'm talking about the first person here. 80 innings पे he is scoring what? 7996. That means one innings पे उसका कितना आ जाएगा? 7996 by 80 आ जाएगा ना? ये Yes, one innings की बात है. अब आप देखो ये फ्रैक्शन जो है, दिस इज अ वेरी बिग नंबर, तो बेटर होगा हमारे लिए वी कन्वर्ट दिस थिंग इनटू डेसिमल. अगर हम सिंपल डिविजन करके इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे बच्चा, तो आपका ये 99.95 आएगा. अब डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो. नाउ सहवाग के बारे में देखते हैं बेटा. His score was 160. innings के लिए he was scoring 10,000, right? So if I talk about one innings, so ये 10,000 over 160 हो जाएगा. इसको अगर आप डिवाइड करोगे बेटा तो this will come as 62.5. Now why I am converting this to decimals? Because fraction में the numbers are too big
too big to be compared. Now talking about this Rahul and Dravid, their innings was 200 innings के लिए, their score was 13,000. तो 1 inning पे कितना होगा? 13,000 divided by 200. Now this will give you 65. Now out of these 3 innings, which is the greatest one? Obviously Don Bradman. This inning is the greatest one. मतलब पूछा गया है कि 1 इनिंग पे स्कोर कितना है. अगर 80 इनिंग्स पे आपका इतना स्कोर है तो 1 इनिंग पे स्कोर कितना है? कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे? यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं. Yes, ma'am. बस डॉन ब्रैडमैन का आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे. ओके, 9th वन देखेंगे. Sneha and Siddharth have rupees 41. 1/4 of Sneha's money is 2 more than 1/7 of Siddharth's. Okay. तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ना दिस इज एक्चुअली फॉर्मिंग एन इक्वेशन. देखो स्नेहा के पास कितना मनी है वी डोंट नो. ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा इक्वेशन यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज यहाँ पे 2 तरीके है करने का. ठीक है बेटा, आप या तो यहाँ पे ऑप्शंस के साथ देख सकते हो या तो यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो. इक्वेशन से आई एम सी डूइंग द फर्स्ट वन. 1/4 ऑफ स्नेहा's मनी. सपोजिटली स्नेहा हैव x रुपीज, हम अज्यूम कर लेते हैं. तो 1/4 ऑफ x रुपीज क्या होगा? 1/4 ऑफ x रुपीज इज 2 मोर देन 1/7 of Siddharth's money. That will be equal to 1/7 part of Siddharth's money plus 2. है ना? ये चीज को आप कैसे कर सकते हो? आप यहाँ पे एक काम करो, आपके पास 41 दिया हुआ है और यहाँ पे किसका बोला गया हाउ मच इज स्नेहा's मनी. सो बेसिकली आप यहाँ पे ऑप्शन के हेल्प से कर सकते हो. व्हाट आई एम डूइंग इज इफ स्नेहा इज हैविंग 27.5, I'm taking the first one and checking. If Sneha is having 27.5, how much Siddharth will have? He will have 13.5. टोटल आपके पास कितना था? 41 था. स्नेहा के पास अगर 27.5 है, सिद्धार्थ के पास कितना होगा? सिद्धार्थ के पास 13.5 होगा, राइट? Yes, ma'am. स्नेहा के Yes, पास ma'am. अगर 20 है तो सिद्धार्थ के पास कितना होगा? मैम 21. अब देखो पॉइंट वाला थोड़ा सा बाद में करते हैं, पहले हम ये वाला देखते हैं. ये तो हमारे होल नंबर्स में आ गए तो इसमें चेक करते हैं. 1/4 ऑफ स्नेहा's मनी, तो 20 का 1/4 मतलब 5 होना चाहिए. इज 2 मोर देन 1/7 ऑफ सिद्धार्थ's मनी. 1/7 मतलब इसका 7 पार्ट करेंगे तो 3 आएगा. 3 से 2 ज्यादा 5 इक्वल हो गया. दैट मीन्स आवर ऑप्शन विल बी बी. तो यहाँ पे व्हाट वी आर choosing the trial and error method. Why we are choosing trial and error? Trial and error क्या होता है कि आप ऑप्शंस एक एक करके चेक करते हो कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है. अदर देन Yes, सॉल्विंग. ma'am. Ma'am, we have studied this in algebraic expression. हाँ जी, अदरवाइज आपको एक अलजेब्रा एक्सप्रेशन मिलेगा जो कि सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, बिकॉज हमने अलजेब्रा अभी तक सीखा नहीं है. यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? आपने 20 Yes, ma'am. Yes, ma'am, clear. 21 दिया तो बस आप इस स्टेटमेंट को चेक कर रहे हो. आगे Ma'am, can you please repeat, ma'am? There was some network issue. हाँ जी, स्नेहा के पास कितने रुपीज है? स्नेहा के पास वी आर हैविंग 20 रुपीज. दैट मीन्स सिद्धार्थ विल हैव हाउ मच? 21. आई हैव आल्सो डन फॉर द फर्स्ट वन एज वेल. फर्स्ट वन के लिए भी मैंने लिखा था. अब देखो फर्स्ट ऑप्शन को मैंने चूज क्यों नहीं किया? क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो आई हैव लेफ्ट इट ये सोच के कि इसको बाद में चेक करेंगे. आई एम चेकिंग द सेकंड ऑप्शन फर्स्ट. पहले 20 आ गया तो यहाँ पे 21 आ जाएगा. स्टेटमेंट इज सेइंग दैट स्नेहा's मनी इज 2 मोर देन 1/4 ऑफ स्नेहा's मनी. तो अगर उसके पास 20 रुपीज था, if she had 20 rupees,
इसका 1/4 कितना होगा 5, that is 2 more than 1/7 of Sidak's money. Now सिदक का क्या हो गया बेटा 3 है, 3 से 2 ज्यादा 5 इक्वल हो गया. That means our option 20 is satisfying the statement that is given here. Yes, ma'am. Okay. सॉक्रेटिव में और कोई डाउट्स है आपको इस वाले सॉक्रेटिव में? No doubts anymore. No, ma'am. ओके. जानवी ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये वर्कशीट से है? नहीं मैम, मेरे को वो डाउट क्लियर हो गया, मैंने अपने पापा से पूछ लिया. ओके. Ma'am, actually, ma'am, I am practicing this fraction and decimal in my rough notebook, ma'am. Ma'am, but I have not reached this far. So, ma'am, if there is any doubt, I'll message you. ओके फाइन. एक क्वेश्चन जो है वंश ने मैसेज किया था मुझे. वंश हैज आस्क्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 25 वाला क्वेश्चन एक बार फॉलो करेंगे. Ma'am, there is no Vansh in our class. ये वंश का मैसेज, ये मैसेज किसका आया था? वेट. अच्छा, मैंने शायद नेम गलत सेव कर लिया है. किसी ने मैसेज किया था बेटा, ये आपने 25th वाले क्वेश्चन में आप में से किसी ने मैसेज किया था. कौन था वो बेटा? किसने मैसेज किया था मुझे? नो वन. चलो, इट वाज माइन. ओके जानवी. ओके जानवी, ठीक है. जानवी का क्लियर हो गया है. फिर चलो आगे देखेंगे बेटा. Those who have done 75 and 79 question, this was already in homework. 75 and 79 करेंगे. ओके प्लीज यहाँ पे फोकस करते हैं. 75 कर रहे पहले, ठीक है. What is in 75? It takes 1/3 of the cloth. Wait a second. Okay, it takes 1/3 of a cloth to make a shirt. How many shirts can Radhika make from a piece of 9 1/3? ये 3 सेंटीमीटर 3 मीटर यहाँ पे नहीं होगा. बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया है? Now Radhika is making a shirt. तो वन शर्ट मेकिंग के लिए कितना क्लॉथ चाहिए? 2 1/3. दैट इज इक्वल टू 7/3. एंड टोटल उसके पास कितना है? टोटल उसके पास 9 1/3 है. दिस इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज इक्वल टू 28/3, राइट? सो how many pieces she can make? तो बेसिकली क्या होगा बेटा, टोटल से अगर आप ये ईच का लेंथ डिवाइड करो तो आपको नंबर ऑफ शर्ट्स मिल जाएंगे. दैट इज 28/3 डिवाइडेड बाय 7/3. दैट गिव्स यू 28/3. ये डिविजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका. 3 कैंसिल हो गया. 7 4 टाइम्स. दैट गिव्स यू 4. क्लियर है बेटा? Yes, ma'am, clear. Yes, बाकी ma'am. बच्चे जिन्होंने कौन था ये? सनीमी बेटा आपका क्लियर है? Yes, ma'am. Because of the question 3 meter long, I was confused. Okay, very good. Now 79 करेंगे हम लोग.
it takes 17 full specific trees to make 1 ton of paper. There are 221 such trees, okay, in the forest. How what fraction will be used for making 5 tons? सिंपली इसको हम यूनिटरी मेथड से करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखते हैं बेटा. बेसिकली यहाँ पे क्या निकालना है, पहले वो नोट डाउन करेंगे. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट विल बी यूज्ड टू मेक 5 टन्स ऑफ पेपर. तो बेसिकली 1 टन बनाने के लिए, 1 टन ऑफ पेपर बनाने के लिए हाउ मेनी ट्रीज इज रिक्वायर्ड? 17. 17 trees are required, right? So if I talk about one tree can make 1/17 tons, right? Yes, ma'am. Yes or no? Now you are supposed to find, now first of all आप देखो यहाँ पे, if there are 221 trees, तो बेटा अगर हमने 221 trees यहाँ पे कर दिया, 221 trees, ओके, आंसर क्या आया हुआ है देखेंगे. 221 ट्रीज कर दिया तो 221/17 टन्स बनेंगे, अगर हमने टोटल इसको एक्सेप्ट किया है तो, राइट. अगर मैंने टोटल इसको ले लिया तो 221/17 पार्ट हो जाएगा. दैट मीन्स हाउ मेनी टन्स? 13 टन्स. yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes. Yes. okay. so basically बेटा अगर आप पूरा फुल यूज कर रहे हो बेटा, तो आपके कितने टन्स ऑफ पेपर बन रहे हैं? 5 टन्स ऑफ 13 टन्स बन रहे हैं. Now what fraction will be used if 5 tons of papers are used? Okay. Now अब यहां से देखो 13 टन्स में कितना बन रहा है? 1 फुल. तो 1 टन में कितना होगा? 1/13. तो 5 टन्स में कितना होगा? 5/13 होगा कि नहीं? मैंने पहले क्या किया, Yes, ma'am. इसको फॉलो करेंगे एक बार. 17 ट्रीज में 1 टन बन रहा है, तो 221 ट्रीज अगर यूज करेंगे, अगर पूरा फॉरेस्ट यूज हो रहा है तो 13 टन्स निकलेगा. यहां तक क्लियर है? अगर 13 टन्स निकल गया, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं. 13 टन्स मतलब 1 फुल पार्ट, तो 1 टन्स मतलब 1/13, 5 टन्स मतलब 5/13 पार्ट. क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Now, to save 7/13 part of the forest, how much paper should be saved? आपको सेव कितना करना है? 7/13. That means out of 13 tons आपको 7 क्या करना है? सेव करना है. तो दिस इज द फ्रैक्शन, राइट? आप ये फ्रैक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल करोगे? कितने ट्रीज के ऊपर? टोटल तो 221 ट्रीज है. टोटल ट्रीज कितने हैं हमारे पास? 221 ट्रीज है. तो ये 7/13 जो आपका आएगा, दैट विल कम ओवर 221. ये कैंसिल करेगा इसको, 17 आपको देगा. नाउ 17 into 7 करेंगे तो 119 ट्रीज मस्ट बी सेव्ड. ओके, ट्रीज नहीं पूछा गया है. ओके 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 ओके. हाँ जी, यहाँ पे टन्स पूछा गया है, राइट? हाउ मच ऑफ पेपर वी शुड सेव? तो 13 टन्स में से आप 7 टन सेव कर रहे हो, तो 7 टन्स होगा, राइट? इसका आंसर आपका 7 टन्स ऑफ पेपर होगा. अगर ट्रीज के लिए पूछा गया है, तो अगर ट्रीज पूछा जाता तो आप बोलते कितना? 119 ट्रीज, और दिस इज 7 टन्स. बोथ आर इक्विवेलेंट. ठीक है, टोटल तो 13 पार्ट्स है. 13 पार्ट्स में से आप 7 को सेव कर रहे हो, तो 13 टन्स में से आप कितना सेव कर रहे हो? 13 टन्स में से आप 7 टन्स सेव कर रहे हो. Yes, ma'am. ठीक है. बाकी एवरीवन, इज इट क्लियर? I'm clear. Yes, ma'am. ओके.
ओके, ये वाला क्वेश्चन फॉलो करेंगे बेटा. आंसर शुड बी इन द चैट बॉक्स. ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे. वेरी गुड तरुष. Correct answers from Avni, Sanini, Namit. Janvi, it's correct. Basically यहाँ पे 3 out of 5 राइट. 3 out of 5 अगर हमारे बॉयज है तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे? 2 out of 5. Now 2 out of 5 should be multiplied with this 45, राइट. तो उसको आप कैंसिल करोगे यहाँ से तो ये आपका 9 आ जाएगा. दैट्स इक्वल्स टू 18. एवरीवन पे आंसर नहीं करना है बेटा, आप मेरे को इंडिविजुअली भेज सकते हो. आई हैव नॉट गॉट आंसर फ्रॉम विदेश एंड राध्या. क्या हो गया राध्या, आपका आंसर क्यों नहीं आया? राध्या, ओके, दिस वन. विदेश, इट्स करेक्ट. आपका आंसर करेक्ट है. Hello, ma'am. यस बेटा. I'm so sorry, ma'am. Actually, na, I'm today my chat is not working properly, and plus I was not able to unmute myself. So I'll see how answers can I answer. I'll fix it up today only. ओके ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं. First correct answer is from Janvi and Tarush. Okay, so Ravi is taking. Ravi can work like he can walk this much of kilometer in 1 hour. अब उसके पास टोटल इतना है तो आपको यहाँ पे आवर्स निकालने के लिए क्या करना होगा? टोटल डिवाइडेड बाय वो 1 आवर में कितना मूव कर रहा है. दैट मीन्स टोटल इज 10. नाउ दिस शुड बी डिवाइडेड बाय दिस नंबर दैट इज इक्वल टू 10/3. इसको आप डिवाइड करोगे यहाँ पे बेटा. So it's 10 multiplied by 3/10. That's equals to 3. Correct आधा सबका आंसर. Okay, 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 okay. Now this one.
वेरी गुड जानवी, अवनी, सनीनी, सारे करेक्ट आंसर्स। तरुष के भी करेक्ट आंसर्स हैं। नमित करेक्ट है भाई। चलो सेम कॉन्सेप्ट में है, इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे। सो द फर्स्ट नंबर हियर इज 25 over 4 डिवाइडेड बाय 1 का कितना है, दैट इज 5 over 4. This comes out to be 25 over 4 multiplied by 4 over 5. All right. Okay. This one has to be done here. Okay, evaluation है बेटा। अब देखो ये डेसिमल में है, डेसिमल में लेट्स सी कि कैसे आंसर आता है आप लोगों का। आई विल नॉट हेल्प यू इन दिस वन एट फर्स्ट गो, ठीक है। आई एम जस्ट वेटिंग कि पहले आप इसको करोगे, उसके बाद आई कैन हेल्प। वेरी वेरी नो नॉट वेरी गुड तरुष। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका सही नहीं है, सेकेंड अटेम्प्ट का आपका सही है। Ma'am, actually first I thought it from 0.016. Then I give the answer. And then I saw that it was 0.16. Then I got the answer correct. बेसिकली बेटा आपका ना नहीं, सेकेंड टाइम में भी जो आंसर किया वो भी करेक्ट नहीं है। आप ध्यान से देखो कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, उसको ध्यान से देखो। स्लाइट मिस्टेक है। ना 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 ना, क्या आ रहा है अवनी? ये मल्टीपल चॉइस चल रहा है क्या बेटा? आपने दो ऑप्शंस दिए। हाँ अवनी। नहीं मैम, वो गलती से स्लैश लग गया था। अच्छा जी, चलो आई विल हेल्प यू हियर। आप लोग देखो, पहले आप पहले वाले फ्रैक्शन के बारे में सोचते हैं, ठीक है। नाउ द पहला वाला फ्रैक्शन है 0.6 डिवाइडेड बाय नमित का। शायद नमित का आपका सही है, नमित हैज ओनली गॉट द करेक्ट आंसर, बट डेसिमल में होता तो और अच्छा होता। बता ये Some देखो, answer is correct. नहीं नहीं, आप कभी भी करेक्ट नहीं है। पहले तो इसको देखेंगे ना, मैं आपका ना, आपने उसको फ्रैक्शन में किया है, बट इफ इट वुड हैव बीन बेटर कि अगर आपने डेसिमल में किया होता। डेसिमल में देखो आसान है, प्लीज यहाँ पे लुक फॉरवर्ड करेंगे बेटा। देखो ये तो 3 है, सॉरी बेटा। यहाँ पे देखो पॉइंट एंड पॉइंट सेम प्लेस में है, तो हम इसको ना कैंसिल कर सकते हैं अगर सेम प्लेस में पॉइंट है तो। और 3 6 को कैंसिल करेगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे पॉइंट सेम प्लेसेस में नहीं है तो पॉइंट्स को हटा देते हैं बेटा। इसका 2 पॉइंट हटा तो नीचे 100 आएगा, इसका 1 पॉइंट हटा तो ऊपर 10 आएगा। ये इसको कैंसिल करेगा तो 4 आएगा बेटा, और ये 10 और ये 100 कैंसिल होगा। वेरी गुड नमित। So this is equal to 2 plus 4 over 10, that is 2.4. ठीक है, डेसिमल्स में है तो आंसर भी डेसिमल्स में ही आना चाहिए ना हमारा। प्लीज इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखो पॉइंट पॉइंट सेम प्लेस पे है तो कैंसिल हो गया, 3 ने इसको डिवाइड किया तो 2 आ गया, राइट। अब ये पॉइंट पॉइंट नहीं कैंसिल हो सकता, तो इसके लिए व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिमूविंग द पॉइंट्स। अब इसका अगर 2 प्लेस का पॉइंट हटा तो 1 2, ये 100 नीचे आने वाला है। इसका 1 प्लेस का पॉइंट हटा तो ये 10 ऊपर जाएगा। ये 10 के साथ ये 0 कैंसिल हुआ, ये 4 इसको कैंसिल किया, दैट इज 2 plus 4 over 10। अब इसके बाद तो आसान है ना वर्किंग हमारा। प्लीज टेल मी इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन।
Ma'am, clear. I'm clear. चलो वेरी गुड. वी आर गोइंग टू डू द सिमिलर टाइप. ठीक है, सिमिलर टाइप में क्वेश्चन करेंगे. आई वांट एवरीवन टू बी करेक्ट. ओके. Only one correct answer I've got till now. Avni will help me. Please come on the mic, है ना? Please help me out. सबसे पहले क्या करेंगे इसको? मैम फर्स्ट विल सिंपल मतलब मैम इसको नंबर्स में कर लेंगे. 24/4 लिखा. What about the points? मैम वो दोनों सेम ही है ना मैम? ना बेटा जी. हेलो. This is one place. This यस is मैम 2 प्लेस. place. तो ऊपर कितना मल्टीप्लाई होगा? मैम 100. नीचे कितना मल्टीप्लाई होगा? 10. ठीक है. प्लस दिस इज 16/8. ऊपर कितना मल्टीप्लाई होगा? मैम 1000. नीचे कितना मल्टीप्लाई होगा? 100. ऑल राइट. कितनी जीरोस कैंसिल होंगे यहाँ पे? पहले उस पे फोकस कर. 1. ओके. नाउ प्रॉब्लम इज यहाँ पे आपने गलत बोला है. Ma'am, 10 into 10 and into 100. अब नहीं बेटा, ये अगर 2 प्लेस है तो इसका 100 नीचे आता है. ये हाँ, अगर ma'am. 1 है तो इसका ऊपर जाएगा. ठीक है. Ma'am, I want to say that, ma'am, it will be also changed for this also. Yes. हाँ जी. अब नहीं, इसका 3 प्लेस है ना, 1 2 3, तो ये 3 नीचे आएगा और इसमें 2 है तो ये ऊपर जाएगा. यहाँ पे आपने मिस्टेक किया है. तो बेसिकली ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा. 6/10 है प्लस ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे. ये 2 कैंसिल से हो गया 2/10. अब ये कितना हो गया? 8/10. दैट इज 0.8. Mom, I have done. I have also cancelled 6/10 and 2/10. ओके वेरी गुड. हाँ जी. पर आप उसको ना फ्रैक्शन में मत लिखा करो. आपका फ्रैक्शन वाला आंसर सही है ना में, बट क्योंकि डेसिमल्स पे आ रहा है ना क्वेश्चन हमारा, तो आंसर भी डेसिमल्स में आना चाहिए. Okay, ma'am. बाकी सनेमी, आपको मिस्टेक पता चला कहाँ पे करा आपने? Yes, ma'am. चलो वेरी गुड. एक और लेंगे. सिमिलर तो नहीं है बट कुछ कुछ. नहीं, वेट अ सेकंड.
इनको करना है आप में आपको। Ma'am, it is 0.4. हाँ जी, Ma'am, is it 0.9 multiplied by नहीं 0.4? 0.4 है, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.4। पॉइंट्स में ध्यान देंगे अच्छे से, ठीक है। Sunny, correct answer. Ma'am, is mine correct, ma'am? Number? मैंने मैसेज किया है, चेक करो। फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय सनेमी, ठीक है। ओके ओके, चलो जामिद का भी करेक्ट आंसर आ गया। बाकी बच्चे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे आपके पास जो भी नंबर है, ठीक है, आप ना पहले ही पॉइंट्स को हटा दो। तो नीचे 2 पॉइंट्स हटाए तो नीचे 100 आएगा। यहाँ से आपने 2 पॉइंट्स हटाए तो नीचे 100 आएगा। ये ऊपर कितना है बेटा, 6 इंटू 6 36 ओवर 6 इंटू 100। यहाँ पे कितना है, दिस इज 16 ओवर 2 इंटू 100। ये 6 इसको कैंसिल करेगा 6 आएगा, ये 2 इसको कैंसिल करेगा तो 8 आएगा। दिस इज 0.06 प्लस 0.08। इन दोनों को अगर आप नॉर्मल डेसिमल के रूल से ऐड करते हो, दिस इज 0.14। आंसर्स मेरे पास नहीं आए हैं, किस किस के, अवनी का नहीं आया, जानवी का नहीं आया बेटा, विदेश का नहीं आया। बेटा आप लोगों को समझ में आया है ये कैसे कर रहे हैं हम लोग? Yes, ma'am. थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओके एक मिनट, 1 सेकेंड। ओहो ये पता नहीं। ओके नहीं, ये वाला करना है आप लोगों को। यहाँ पे दिस इज वी हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म। Missing term in the sense we do have to find what will be in the place of question mark here.
ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज यहाँ पे कुछ एक आंसर्स ऐसे आ रहे हैं हमारे पास. Someone is writing 0.05 and someone is writing 500. अब इसमें कंफ्यूजन क्या है? देखो, हाउ वी विल आइडेंटिफाई वेयर शुड वी स्टार्ट. बेटा एरो को फॉलो करेंगे, ठीक है. ये देखो, ये एरो यहाँ से शुरू हो रहा है ना. एरो आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब आप इसको स्टार्टिंग में लोगे, ना कि आप किसी और नंबर को स्टार्टिंग में ले रहे हो. अगर आपने इसको स्टार्टिंग में लिया तो आप क्या फॉलो कर रहे हो कि कैसे जा रहा है. ये इंटू 10 हो रहा है, फिर ये इंटू 10 हो रहा है, फिर ये इंटू 10 हो गया है, फिर आगे ये इंटू 10 होगा, राइट. दैट मीन्स यहाँ पे 500 आएगा. अगर आपने उल्टा कंसिडर किया, उल्टा इन द सेंस, आप अगर ऐसे कंसिडर कर रहे हो कि 50 के बाद से 5 गया है तो डिवाइड कर रहे हैं 10 को, तो वो गलत है, क्योंकि आप 50 से 5 पे नहीं जा रहे हो, आप 5 से 50 पे आ रहे हो. ये इंपॉर्टेंट है. जिनका भी आंसर 0.005 आ रहा है, आप लोग एक गलत तरीके से कर रहे हो. वो गलत क्या है आपका, ये देखो. आप क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि 50 के बाद 5 आया तो डिवाइड 10 किया, 5 के बाद ये आया तो डिवाइड 10 किया, फिर ये आया तो डिवाइड. तो ऐसे करने से am I following the order of the arrow? Am I following the order of the arrow? No, right? I'm not following the order of the arrow in this scenario. That means that's the wrong way of doing. We have to follow it. कि ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, that means into 10 हुआ है, यहाँ से यहाँ पे into 10 हुआ है, फिर 5 to 50 में into 10 हुआ है, आगे जब जाएगा ये into 10 करेंगे. That's 500. बच्चा क्लियर है आप लोगों को? आप लोग यहाँ पे 500 क्यों, 0.005 क्यों नहीं ले रहे? एरो को फॉलो करना है आपको, ठीक है. चलो ये वाला भी देखेंगे. वेरी गुड तरुष, करेक्ट आंसर. अब नहीं, आपका बस डिजिट गलत है, आपने गलती से मैम गलती से टाइप कर दिया था, मैंने सही भेज दिया आपको. सनीमी करेक्ट, अवनी करेक्ट, नमित करेक्ट. चलो जानवी करेक्ट. सो बेसिकली ये 10 से डिवाइड हो रहा है आपका, ये भी 10 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी आगे जब जाएगा 10 से डिवाइड होगा 0.0001. Okay, you have to do this one. तरुष करेक्ट है आपका आंसर. सनीमी करेक्ट, जानवी करेक्ट. नमित करेक्ट है. ओके 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 ओके, तो आगे देखेंगे. यहाँ पे बेटा 0.3 इंटू 0.3, तो ये 9 आ जाएगा. 2 डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे, माइनस यहाँ पे 0.04 आ जाएगा. दैट मीन 0.05 आपका आंसर है. ओके, नाउ दिस इज द अदर वन. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस वन. अगर एक नंबर उनमें से 0.72 है, व्हाट विल बी द अदर नंबर?
Okay, correct answer from Janvi. Very good. Shanemi, it's correct. सिंपली डिवाइड कर दो बेटा, यहाँ पे आपका कुछ है ही नहीं। देखो ये 0 पॉइंट, इसको पहले तो हम पॉइंट्स को हटा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा आपका 1000। ये दोनों हट गए। हम हमारा टारगेट क्या है, इसको डिवाइड करना। इसको सिंपल डिवाइड करेंगे, इसको सिंपल डिवाइड करेंगे तो 278 आएगा बच्चा। 278 ओवर 100, दैट मीन्स दिस इज 2.78, है ना। आसान सा क्वेश्चन है, अगर कैलकुलेशन एरर होगा तो फिर आंसर नहीं आएगा। Mom, I was just dividing it. It was not too simple. ओके ओके ओके, अवनी आपका भी आंसर आया है? अवनी? No, ma'am. Actually, मेरी calculation error हो गई थी तो फिर से मेरे को redo करना पड़ा. तारुष, यू गॉट योर मिस्टेक? Yes, ma'am. ओके मैम, चलो। ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको मैं ये जस्ट समझा देती हूँ, उसके बाद आप इसका आंसर खुद करोगे। एक साइंस लैब में some measurements are made. These measurements are trying to be accurate. Okay. Now, while experiments, there's a possibility that किसी की experiment गलत हो जाती है. If you have a very wrong experiment, you are going to get wrong values for your experiment, right? Now, this Ravi measured the length of an iron rod and said that it was 19.34. So, Ravi's length कितना आया है 19.34. Kamal has it as 19.25 and Tabish has it as 19.27. But the correct length is 19.33. Okay, I am doing for Ravi. बेटा अगर एक्चुअल लेंथ 19.33 है, रवि को मिला कितना है 19.34, राइट? तो उसमें एरर कितना हुआ है? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एरर? एरर मीन्स मॉड्यूलस ऑफ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। एरर मीन्स मॉड्यूलस ऑफ एक्चुअल वैल्यू माइनस द एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू कितना है 19.33, एस्टिमेटेड वैल्यू कितना है रवि का 19.34, राइट। सो उसका एरर कितना हुआ है यहाँ पे? एरर इज इक्वल टू 0.01, राइट। ये समझ में आया हमने एरर कैसे निकाला यहाँ पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाकी दोनों आप निकालोगे एरर। Ma'am, what do we have to do? आपको एरर निकालना है बेटा। Okay, ma'am.
कमल का 0.08 था। Tarush, it's correct. जानवी, it's correct. ना जानवी आपका करेक्ट है. अवनी, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? Shall I repeat it? Yes, ma'am. बेटा एरर क्या होता है? मिस्टेक, राइट? एरर मीन्स मिस्टेक. सो बेसिकली कोई एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो एक्चुअल लेंथ होता है वो कभी नहीं आता है. तो यहाँ पे एक्चुअल लेंथ दिया हुआ है 19.33 एंड यहाँ पे 3 लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, उनके अलग अलग वैल्यूज आए. तो एरर निकालने का तरीका क्या होता है? यू आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टिंग द, देखो आपको यहाँ पे एक मॉड्यूलर साइन लगाना है, ठीक है? और ये क्या होता है आपका एक्चुअल वैल्यू माइनस आपका जो निकला है यहाँ पे, दैट कैन बी टोल्ड एज एस्टिमेटेड वैल्यू. ठीक है? अब हम अगर रवि का केस ले ले, रवि के केस में एक्चुअल वैल्यू क्या था? 19.33 एंड उसने निकाला कितना था? 19.34 निकाला था बेटा. तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 0.01 आएगा. तो 0.01 का एरर था रवि के केस में. In the same manner, you are calculating the error for Kamal and Tabish. That means error is nothing but the difference between the actual number, actual length, and the length that has been found by both the people. हाँ जी. हाँ जी मैम, मेरे को मैम समझ में आ गया था. एक्चुअली मैंने उन सबको ऐड कर दिया था, लेकिन 19.33 से माइनस नहीं किया था. ओके, ऐड नहीं करना है, माइनस करना है आपको. सनीमी आपका करेक्ट है, नमित आपका करेक्ट है. तो बेसिकली आप यहाँ पे जब आप कमल का निकालोगे, that is 19.33 minus 19.25, this gives you 0.08. And when you are going to find it for Tabish, it's 19.33 minus 19.27, that is 0.06. सबका आंसर करेक्ट है. ओके मैम. हाँ जी. मैम तो मतलब मैम आंसर हमें मैम सबका मतलब लिखना था, जैसे कि क्या कहते अलग-अलग हैं लिखना कि था. किसने कितना एरर किया था. हाँ जी. कमल का कितना है? तबीश का कितना है? अच्छा By मैम, मैंने each वो voice. निकाल लिया था, मैंने कुछ और कर दिया था शायद से. आपने ऐड कर दिया होगा. हाँ जी मैम. बेटा आपको यहाँ पे ईच वॉइस का निकालना है, मतलब हर एक ने कितना एरर किया है वो निकालना था. ठीक है? ओके बेटा, चलो आगे चले. एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. दिस वन आई विल डू. ठीक है? दिस वन आई विल डू फॉर यू. इसके बाद वाला आप खुद करोगे. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. क्वेश्चन को पढ़ के समझेंगे. ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट एक कंसेप्ट है. सपोज यू हैव अ फ्लोर, आप फ्लोर के ऊपर टाइलिंग कर रहे हो, तो नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स शुड बी ऑलवेज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच टाइल. ये कॉन्सेप्ट हमने क्लास 6 के पेरीमीटर एंड एरिया में सीखा होगा. अगर नहीं सीखा है तो आप इसको ध्यान से देखो. हमेशा when you are, suppose just imagine you look at the floor in front of you, you want to paste some tiles. ठीक है? तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगा? डेफिनेटली जो टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर है, और डिवाइड क्या करेंगे उससे? ईच टाइल का एरिया. यहाँ तक क्लियर है? ये फॉर्मूला कैसे आया? Yes, ma'am. ओके. तो यहाँ पे ये देखो 2 3 ओके. तो बेसिकली आपके पास फ्लोर है, इतना लेंथ है, इतना ब्रेथ है, तो फ्लोर का एरिया कितना होगा? 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.6 हो जाएगा. एक टाइल जो है, ओके, नाउ द फैक्ट इज आपका फ्लोर मीटर में है, टाइल सेंटीमीटर में है,
तो बेहतर होगा कि हम सब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले। तो एरिया ऑफ फ्लोर करेंगे हम। सो ये 4.5 मीटर है, तो ये 4.5 इंटू 10 कर, इसको इंटू 100 करेंगे, राइट? दैट मीन्स 450 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा, है ना? यस मैम। और यहाँ पे 33.6 मीटर है, तो ये 360 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका एरिया कितना आएगा? 450 मल्टीप्लाइड बाई 360। अब एरिया ऑफ टाइल्स निकालते हैं बच्चा। एरिया ऑफ टाइल्स क्या आएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 60 आएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 10 आएगा। तो बेसिकली कितना आया? 4, 5, यहाँ पे 00। इतने सारे टाइल्स आप यूज कर रहे हो, 4500 टाइल्स आप यूज कर रहे हो अपने फ्लोर के लिए। एंड बेसिकली आपने कॉस्ट कितना देना है? 23.25। 23.25 should be given for one time. So basically 4500 should be multiplied by 23.25. अब ये पॉइंट को आप यहाँ से रिमूव करके नीचे 100 लिख सकते हो। अब ये 00 जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये 00 कैंसिल हो गए तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास तो बस नंबर्स बचे मल्टीप्लाई करने के लिए। दैट इज 2325 मल्टीप्लाइड बाय 45। इसको करेंगे तो बहुत लंबा सा एक नंबर आएगा, कुछ 104625 ऐसा नंबर आ जाएगा। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द एंटायर फ्लोर्स। Please tell me if this doing is correctly understood by everyone. Yes, ma'am. Can you please tell the concept again? बेटा आपको टाइल्स निकालना है। नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये हमने क्लास 6 में सीखा है, Yes, पेरीमीटर ma'am. एंड Area एरिया of से। floor, ma'am, upon ma'am area of each tile. हाँ जी, तो उससे पहले तो हमें दोनों को सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा, राइट? क्योंकि ये तो Yes, ma'am. सेंटीमीटर है। तो मैंने 4.5 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अब नंबर ऑफ टाइल्स निकाल रहे हैं। ऊपर की तरफ हमने क्या रख दिया? एरिया ऑफ फ्लोर रख दिया। नीचे की तरफ क्या रख दिया? एरिया ऑफ टाइल्स Area रख of दिया। tile. तो बस हमारे पास 4500 टाइल्स आ गए। अब एक टाइल्स की कॉस्ट जो है बेटा 23.25 है, तो आपको Okay. इसको 23.25 से मल्टीप्लाई करना है। Okay, ma'am. ओके, चलो आगे देखेंगे। ओके, आई एम गिविंग अ क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड। वी हैव अ फ्लोर हियर एंड फ्लोर के जो डायमेंशंस है वो आपके हैं 2.4 मीटर बाय 3.6 मीटर। वन टाइल, ओके, लेट इट बी अ स्क्वायर टाइल, ठीक है? You have a square tile of length 4 centimeter. All right, and the cost is ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? फ्लोर का मैंने मेजरमेंट दे दिया है, टाइल का मेजरमेंट दे दिया है, एक एक टाइल का कॉस्टिंग दे दिया है। तो आपको टोटल निकालना है कितना कॉस्ट आएगा। यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है? यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है।
Please do the multiplication carefully, beta. Multiplication, I think you are doing some errors, so the answer is coming wrong. ओके, आगे देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो we have to find the number of tiles. Can you please tell me किसका कितना टाइल आया है? तरुष, Ma'am, I have got 2160. 160 tiles. Oh God. जानवी, आपके कितना आया है? 540. 540 अलग अलग आ रहे हैं अब सबको। नमित, आपका कितना आया है टाइल्स? Ma'am, 24. सबसे पहली बात बेटा, यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। आप लोगों ने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. 2.4 को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? Ma'am, 240. और इसको करेंगे तो ये कितना आएगा? 360. नीचे 4 and 4 ही रहेगा। 4 इसको कैंसिल करेगा तो 60, 4 इसको कैंसिल करेगा तो 90। तो बेटा आपका 5400 नहीं आ रहा है टाइल्स? No, ma'am, I didn't get this answer. हाँ जी, Ma'am, No, I didn't got this answer. get this answer. ऐसे Ma'am, किया I फिर आप didn't लोगों did 4 into 4. Yes, ma'am, I ओके। did same mistake. Yes, ma'am, same thing. स्क्वायर टाइल है ना बेटा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? 4 into 4 ही तो होता है बेटा। Yes, ma'am. तो बेटा ये 5400 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 12 25 ओवर ये नीचे ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब मैम यहाँ मेरा आगे तो जो बहुत बड़ा सा नंबर आ रहा था, कुछ 66 पता नहीं क्या आ रहा था। हाँ जी 66,150 आएगा।
Yes, ma'am. यही आ रहा था मेरा. Ma'am, this much number of tiles. नहीं, ये रुपीज है ना बेटा, ये तो नंबर ऑफ yes, टाइल्स हो yes. गए, ये तो नंबर ऑफ टाइल्स हो गया. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तो हम लोग रुपीज पे निकाल रहे हैं ना, कॉस्टिंग कितना जाएगा इनका, है ना. Ma'am, I was writing the answer, but तब तक आपने आंसर बता दिया. कोई बात नहीं, चलो. बाकी बच्चों ने अपना अपना मिस्टेक देखा बेटा, यहाँ पे ध्यान से करेंगे. ये तो स्क्वायर टाइल है ना. Yes, ma'am. Got mistake. चलो आगे बढ़ेंगे. ये वाला क्वेश्चन करना है. देखो बेटा, अनुराधा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 hours. व्हाट पार्ट शी कैन डू इट 1 hour, 5 hours एंड 6 hours. ये आंसर आपका कॉमा दे दे के आना चाहिए. अगर इसका आंसर ए है ए, इसका आंसर बी है तो बी, इसका आंसर सी है तो सी. 3 पार्ट्स के अलग अलग आंसर आएंगे कॉमा दे के. प्लीज नोट इट डाउन. ओके, अवनी करेक्ट है, सनीमी करेक्ट है. फ्रैक्शन में आएगा बेटा, फ्रैक्शन में आएगा. दारुष करेक्ट है. ओके, अगर 6 आवर्स में पूरा काम होता है बेटा, तो 1 आवर में कितना होगा? 1/6 यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं. 5 आवर्स में कितना होगा? 5/6 होगा. और 6 आवर्स में तो पूरा काम ही हो रहा है, राइट. तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो. इंस्टेड ऑफ 6/6 आप इसको 1 लिख सकते हो. एक आंसर आया हुआ है 6/6 का, तो आप 6/6 के अलावा आप इसको 1 डायरेक्टली लिख सकते हो कि पूरा काम ही जो है मेरा खत्म हो रहा है. बाकी आंसर सबके सही आए. ओके, please do this one. What portion of sari Rihanna can paint in 1 hour if she requires 5 hours to paint the whole sari? 4 and 3/4 hours में कितना पार्ट करेगी एंड इसमें कितना पार्ट करेगी? वही A, B, C के फॉर्मेट में आंसर आना चाहिए. जानवी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 3 पार्ट्स है बेटा. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे. And the second thing is आपके options I don't think they are correct.
whenever they're asking ki what portion has been done, right? So portion either can be 1 full or it can be something like 5/7 or 7/15, something like that. So portion हमेशा ही fraction में आता है, or else it will come as a whole part. नो, क्या हो गया बेटा, आप लोगों का सही नहीं आ रहा है आंसर. I will ask Janvi first. Okay, Janvi, please come to the mic. Yes, Tell me one. बेटा वो 1 hour में कितना पार्ट करेंगी? सनीमी, एग्जैक्टली करेक्ट, वेरी गुड. बेटा उसने 5 आवर्स में पूरा काम खत्म करना है, तो 1 आवर में कितना काम खत्म करेगी वो? आप या तो स्टार्टिंग से ऐसे ले लो कि आप ऐसे लिखो कि 5 आवर्स में उसने 1 काम किया, राइट, 1 पार्ट किया, तो 1 आवर में कितना करेगी वो बेटा? Say 1/5. Yes, 1/5, very good. What about 4/3/5 hours? 4/3/5 को कन्वर्ट करेंगे तो ये 23/5 hours होगा, राइट? अब 1 आवर की जगह पे आई नीड 23/5 hours, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 23/5 hours बनाएंगे, राइट? तो ये 23/5 दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा बेटा? Yes, ma'am. तो ये कितना आता है आपका? 23/25 आता है, राइट? है ना बच्चा? तो पहले वाले का आपका कितना आया? 1/5. उसके बाद वाले का कितना आया? 23/25. अब नेक्स्ट पार्ट का देखेंगे. अब देखो 1 आवर पे दोबारा देखेंगे. 1 आवर पे शी इज डूइंग 1/5 पार्ट्स. तो ये आपका कितना आ जाता है? ये 7/2 आवर्स हो गया. तो यहाँ पे 7/2 आवर्स लिखेंगे, तो यहाँ पे भी तो 7/2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? दैट मेक्स इट 7/10 पार्ट्स. बेटा वर्किंग क्लियर है सबको? Yes, ma'am. सरोज आपको? Yes, ma'am, clear. विदेश, आपका कोई ना तो आंसर आ रहा है बेटा, ना तो आपका रिप्लाई आ रहा है. विदेश, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, वेरी गुड. चलो ये वाला करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बेटा. आई नीड एवरीवन, फ्रॉम एवरीवन इट टू बी करेक्ट. Excuse me, ma'am. हाँ जी. मैम एक्चुअली मैम ये मैंने मैम क्वेश्चन मैम किया हुआ है मैम, सो मैं क्या फिर भी आंसर लिख दूं मैम, लेकिन मेरे को पता क्या आंसर है. हाँ डायरेक्ट लिख दो, कोई बात नहीं. ओके मैम. Ma'am, is my answer correct or not? Oh, it's not correct. आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन में एरर हुआ है मुझे लगता है, एडिंग या तो सब्ट्रैक्शन में. अवनी करेक्ट, नमित करेक्ट, सनीमी करेक्ट, वेरी गुड. सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक हुआ है तरुष, आप चेक कर लो, सही आ जाएगा आपका. Ma'am, in worksheet also it was same question. अच्छा. हाँ क्वेश्चंस तो मोर और लेस सेम ही रहता है. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये मिक्स करके रहता है ना क्वेश्चंस. वर्कशीट में भी आप लोगों के एग्जाम्पलर्स और एनसीईआरटी ही है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है कुछ. राध्या करेक्ट.
जानवी बेटा, आपको ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा आंसर? आप डिनोमिनेटर क्यों नहीं लिखते हो? न्यूमरेटर तो करेक्ट है आपका। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबको ऐड करेंगे यहाँ पे। अब देखो, ही इज सेलिंग रेनू, कमला एंड रेनू का 3/4 लीटर ईच, दैट मीन्स 3/4 इंटू 3, हर किसी को मिला है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 9/4। सदमा को ही इज गिविंग 7/8, दैट मीन्स प्लस 7/8 प्लस। जस्सी को ही इज गिविंग 1/2, दैट मीन्स 3/2। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। ये आपका 18 बन गया, ये आपका 7 बन गया, ये आपका 12 बन गया, दैट गिव्स यू 37/8। दिस मच इज ऑलरेडी गिवन टू एवरीवन। और उसके पास कितना था? 5.5, दैट मीन्स 10/2। अब 10/2 से जितना गिवन हो गया, दैट इज 37/8। सॉरी, Ma'am, it will be 11/2। 11/2. हाँ जी, मैम 11/2। हाँ जी, हाँ जी। So it's 8 and 44 minus 37. That's giving it the value 7/8. ठीक है बेटा, सबका समझ में आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड मैम जी। ओके, चलो ये भी करना है आप लोगों को, ठीक है? हाउ मच क्लोथ्स दे आर आस्किंग बेटा, शर्ट्स नहीं, क्लोथ कितना रिक्वायर्ड है वो बताना है आपको। Ma'am, in the question 2/1/4 is the total length required for the shirt. ये तो आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ वेस्ट के बारे में भी बताया गया है। ये जो 1/8 है, ये कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, ये भी तो समझोगे आप। बेसिकली, how much cloth is used for making 6 shirts? Fine, that's okay. Each shirt requires this one. देखो, when a tailor makes a cloth, ठीक है, अगर आपने कभी देखा होगा तो वो एक पीस ऑफ क्लॉथ लेता है, इसमें कुछ कटिंग करते हैं, ऐसे ऐसे करके कटिंग हो गया, कटिंग के बाद से व्हाट वी गेट अ न्यू शर्ट। अभी कटिंग करने के टाइम पे कुछ एक क्लॉथ के मटेरियल कट के बाहर गिर जाते हैं ना, तो दैट इज नोन एज वेस्ट क्लोथ। बट जब आप इसको खरीदोगे, आपको तो ये अज्यूम करना पड़ेगा ना कि ये वेस्ट क्लोथ इंक्लूडेड है। आप वेस्ट क्लोथ के बिना कैसे कपड़े खरीदोगे, राइट? अगर आपने, सपोज मैं इमेजिन करती हूँ, एक सिचुएशन समझाती हूँ मैं आपको। एक टेलर है जिसका नाम है ए, उसको एक शर्ट बनाना है। शर्ट में उसको 6 मीटर कपड़े लगेंगे क्लॉथ में, एंड 2 मीटर का वेस्ट होगा, ठीक है? नाउ माय क्वेश्चन इज, उसको शर्ट बनाने के लिए 6 मीटर क्लॉथ चाहिए एंड 2 मीटर का वेस्ट चला जाएगा कटिंग में। तो जब आप अगर टेलर के बारे में सोचोगे, तो ये टेलर दुकान से कितने मीटर का क्लॉथ खरीद के लाएगा? 8 मीटर का लाएगा या 4 मीटर का लाएगा? Ma'am, is my answer correct? राध्या का सही है बेटा। अब माय क्वेश्चन, ये वाला पार्ट समझ में आया मैं क्या पूछना चाहती हूँ? ए इज अ टेलर, ही इज मेकिंग अ शर्ट, उसके लिए ही शर्ट के लिए पूरा 6 मीटर का क्लॉथ चाहिए।
बट वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है, कुछ कटिंग में ना कुछ कपड़े वेस्ट हो जाते हैं, तो वो 2 मीटर का वेस्टेज हो रहा है। तो जब वो क्लॉथ खरीदने जाएगा तो क्या वो 8 मीटर क्लॉथ खरीदेगा या 4 मीटर क्लॉथ खरीदेगा? हु कैन आंसर दिस? मैम 8 मीटर। मैम 8 मीटर खरीदेगा ना, तो ये वेस्ट वाला पार्ट इंक्लूड हो रहा है आपका। तो बेसिकली एक शर्ट के लिए 19 मीटर, नहीं आंसर सही नहीं आ रहा है किसी का भी, ओनली राधिया वन इज करेक्ट। तो शर्ट खरीदने के लिए बेटा जब वो जाएगा वो वेस्ट पार्ट को भी इंक्लूड करेगा यहाँ पे। दिस इज 9/4 plus 1/8, that means this is okay 18 19/8। ये एक शर्ट के लिए उसको इतना क्लॉथ रिक्वायर्ड है। अब इसी को वो 6 से मल्टीप्लाई करेगा, that is 19 into 3/4, this is giving it I got the same answer right now. Ma'am, actually I was minusing the waste. okay, very good, very good। नहीं कोई बात नहीं, माइनस नहीं करते ना वेस्ट को, आप लॉजिकली Ma'am, सोचो तो please। when you told us that we have to add, ma'am, I was writing the answer only. Then only you gave the answer. You got the answer. तो इसको आप करोगे तो 14.25 आएगा या तो 14 1/4 आएगा। वेस्ट मटेरियल बिना, आप टेलर के पर्सपेक्टिव से सोचो ना, वो वेस्ट कपड़े को भी तो खरीदता ही है ना, खरीदने के बाद ही तो वो वेस्ट होता है। खरीदने से पहले अगर वेस्ट होता तो आप खरीदते ही नहीं, है ना। तो जब सपोज जस्ट इमेजिन यू आर गोइंग टू अ शॉप एंड यू आर बाइंग सम फूड्स, पिज्जा एंड ऑल, अगर आपको पता ही है कि ये वेस्ट होने वाला है तो आप तो खरीदोगे ही नहीं ना। खरीदने के बाद वो वेस्ट होता है, तो इसका मतलब इनिशियली वो वेस्ट इंक्लूड होता है ना आपके खरीदने के टाइम पे। तो बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सबको समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड राधिया, गुड जॉब, यू हैव गॉट इट करेक्ट। थैंक यू मैम। वेरी गुड, चलो आगे ये वाला करेंगे, है ना। ये वाला तो आसान सा सवाल है। Namit, calculation. Tarush, correct. Ma'am, this time can I also send my procedure ki how I did it? इस वाले में हाँ, not required, like Not Radhya, I will required. ask you. I will ask you this time. Okay. Okay. Namit, now it's correct. Janvi correct, Radhya correct. Ma'am, since Tarush said that he is doing abacus to do math so fast, I also started to see some videos about abacus. Okay, very good, very good. That's a very good thing. जानवी नहीं, जानवी का कैलकुलेशन एरर हुआ है कुछ। चलो एक बार देख ले। चलो राधिया, चलो टेल मी हाउ टू डू इट। Sure, ma'am. 1 minute. Yeah. So first, what we have to do is कि 360 को हम लोग 5 से multiply कर देंगे. ठीक है। Then the answer would be, I guess, 3 km, and then we'll just sorry, एक मिनट. Yeah, 3 फिर हम लोग उसको 120 से multiply कर देंगे, जो आंसर आएगा will give us 600. अच्छा, आपने थोड़ा सा आपने करा तो सही है, बट बोलने में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। मैं एक बार यूनिटरी मेथड से एक बार समझा देती हूँ। देखो 3/5 का
3/5 का पार्ट अगर यूनिटरी से कर रहे हैं 3/5 इज इक्वल टू दिस 360। तो बेसिकली मुझे इसमें 1 बनाना है, तो 1 बनाएंगे तो आपको ये नंबर और ये नंबर दोनों ही दूसरी तरफ ट्रांसफर करना है। 5 को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मैम 360 to 5/3। हाँ, और 3 को चेंज करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 1 पार्ट। तो ये आपका आध्या ने सही तो कहा था, बट ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। बाकी ये आंसर 600 आएगा आपका। यस मैम। है चलो चलो, ओके एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस इज ओके, दिस वन। Ma'am, it is 75 rupees. हाँ जी, 75 रुपीज। तरुष आंसर इज करेक्ट। तारुष करेक्ट, सनेमी करेक्ट। बेटा यहाँ पे तो ये सिंपल है ना, 3/8 पार्ट जो है, अवनी यू विल कम ऑन द माइक एंड टेल मी 3/8 पार्ट इज इक्वल टू 75। तो आपको यहाँ पे हाउ मच डिड शी अर्न, मतलब पूरा पार्ट निकालना है, 1 बनाना है। तो 1/1 इसमें इसको हम दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे, राइट। तो आप बताओ 8 दूसरी तरफ जाके क्या होगा। Okay, am I not audible to anyone? Ma'am, you're audible. Audible. अवनी आपको आवाज आ रहा है बेटा? Okay, अवनी wait. Ma'am, is mine correct, ma'am? Number? अमित, हाँ जी। चलो अवनी बेटा आप यहाँ पे फॉलो कर लो। चलो जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, है ना, अवनी को ज्वाइन करने देते हैं, उसके बाद वी विल डू इट। अवनी, कैन यू लिसन टू मी राइट नाउ? यस मैम, मेरे को लगता है कोई नेट इशू हो गया था। ओके, कोई बात नहीं बेटा। यहाँ पे देखो 3/8 पार्ट इज इक्वल टू 75, राइट। तो बेटा ये 8 पार्ट को आप उधर ले जाओगे पहले, क्योंकि इसको 1/1 हमें ट्रांसफर करके 1 तक लाना है। अगर मैं 8 को दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो ये क्या होगा बताओ। मैम मेरे को समझ नहीं आया मैम, आप क्या कह रहे थे? ओके, आपके पास 3/8 पार्ट है, राइट। तो बेसिकली 3/8 पार्ट इज इक्वल टू 75। आपको इस 3/8 पार्ट को 1 बनाना पड़ेगा, तभी तो आप निकाल पाओगे कि वो कितना अर्न करता है। यस मैम। तो बेटा यहाँ से आप 1/1 सारे नंबर दूसरे साइड ले जाओगे। पहले 8 को ले जाओगे तो इस तरफ आके क्या होगा वो। मैम डिवाइड होगा ना? ना बेटा, ये डिवाइड ऑलरेडी है, दूसरी तरफ आके क्या होगा। मैम मल्टीप्लाई। और ये डिवाइड मल्टीप्लाइड है तो ये नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया आपका 25। तो 25 into 8 दैट गिव्स यू 200। यस मैम। ठीक है, क्लियर है सबको? सबको क्लियर है बेटा? Yes, ma'am, it is clear. ओके देन, सो फ्रैक्शंस और डेसिमल्स यही पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। आई थिंक डेटा हैंडलिंग है शायद से, है ना, डेटा हैंडलिंग ही होगा, तो वो स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में।
ठीक है, चलो, Okay, so ma'am. we Bye, are ma'am. ending our Ma'am, class. I think Bye. almost all of these Yeah, ma'am. questions you have given us were like from the handouts. बेटा हैंडआउट्स में भी तो वही है ना, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलरी तो है, Yes, और ma'am. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही तो है ना। हैंडआउट्स में एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, उसके बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। एंड पीपीटी में वी मेक ट्राई टू मेक सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम आइदर एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी। तो बेसिकली हैंडआउट्स में तो रहेगा ही, जो पीपीटी में है वो हैंडआउट्स में रहेगा ही बच्चा, क्योंकि हैंडआउट्स में उसके बाहर कुछ है ही नहीं। Okay, ma'am. ठीक है, चलो, Bye, ma'am. Have a Okay. nice day. ओके बाय, हैव अ नाइस Okay, डे। ma'am. Thank you for teaching. थैंक यू बेटा। Thank you. हाँ जी बच्चा, बाय, Good night. गुड नाइट।